Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this particular lecture, we will discuss about the second order linear differential equation with variable coefficient. So what we have seen in the previous set of lecture is that a linear differential equation with constant coefficient of nth order, sorry ऐसे लिखो, linear differential equation of nth order with constant coefficient is given by, okay, we have nth derivative of y upon dxn plus a1 times of dn minus 1 n minus 1th derivative dx n minus 1 plus a2 dn minus 2 y upon dx n minus 2, like this. It is up to an times of y is equal to q of x. Q of x is a function of x. Okay, so we have this as, we can write d upon dx as capital D. Okay, suppose n is equal to 2. Okay, so we have this as d2y upon dx square plus a1 dy upon dx plus a2 times of y is equal to q of x. ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, एज सिंपल एज दैट. वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म आल्सो, d. Okay, so this is dny plus a1 dn minus 1 times of y plus a2 dn minus 2 times of y plus an into y is equal to q of x. This is nothing but dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2, like this. An times of this is y is equal to q of x. समझ में आ रहा है? Okay, so here when we put n is equal to 2, we get this particular form. Okay, so here this a1 and a2 are constant. Okay, on comparing with this particular equation, we have in this particular lecture we are studying second order linear differential equation with variable coefficient. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, constant coefficient पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या है, ये variable coefficient है. Okay, so the concept here is that for solving such type of questions we have to convert these variables into constant. Okay, अब constant में convert होने के बाद इसका क्या होता है, अगर इस particular form का equation है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है CF प्लस PI. समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर फॉर्म से हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना, इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है ना. तो सेकेंड ऑर्डर ये क्या है हमारा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट. तो इसको हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. आफ्टर कन्वर्टिंग वी गेट द सॉल्यूशन एज जनरल सॉल्यूशन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विद प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. समझ में आ रहा है? सो बाय यूजिंग दीज मेथड्स वी कैन कन्वर्ट from this particular equation to this particular equation. Here the variables px and qx are variables. Okay, here the coefficients are variables, but in this particular equation we have the coefficients as constant. Okay, as simple as that. So the first one is change of dependent variable when part of complementary function is known. Let us discuss this. Okay, so the working here is that, so this is our equation, standard form, second order linear differential equation with variable coefficient. ठीक है, अभी देखो we have the total solution, that is general solution as complementary function plus particular integral. ठीक है, so अगर let us suppose y is equal to ux,
दिस इज द पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. समझ में आ रहा है? एक पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. दिस इज नॉट कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बट ux इज पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, p क्या है यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 हो जाए तो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज u इज इक्वल टू ई टू द पावर x. अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो जाए तो वन ऑफ द सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x. समझ में आ रहा है ना? तो ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखने पे ही आ रहा है, ए की वैल्यू -1 रखने पे ही आ रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर m टाइम्स ऑफ m-1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा तो पार्ट ऑफ सी एफ क्या है, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m. समझ में आ रहा है? तो इसमें m की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू 1 रखने पे u इज इक्वल टू x आ जाएगा. 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये कब आएगा, m इज इक्वल टू 2 रखने पे. m इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या होगा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू यू भी होगा. समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू यू भी होगा. और u कहाँ से आ रहा है, u इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और v कहाँ से आएगा, v आएगा ये पार्टिकुलर इक्वेशन से, दैट इज d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx इज इक्वल टू r अपॉन u. समझ में आ रहा है? दिस इज द concept here. Okay, let us solve one problem based on this. Okay, so let us discuss one problem on this. So we have x square d2y upon dx square minus 2x 1 plus x dy upon dx plus 2 1 plus x into y is equal to x cube. ठीक है, so now let us compare this equation with this one. This is the general, this is the equation of in the standard form. Okay, so here this is not matching with this standard form. Okay, so here the coefficient of d2y upon dx square is 1, but here it is x square. So we have to divide this whole by x square. Let us divide this x square upon x square. Okay, and this upon x cube upon x square. This is nothing but x. Okay, so this is our p. On comparing this with this equation, we have this is our p and this is our q and this is our r. Okay, let us name this as equation 1. Okay, now let us assume the general solution of equation 1 as y is equal to uv, where u is part of complementary function and v is given by the equation d2v upon dx square plus p plus 2 upon u du upon dx dv upon dx is equal to r upon u. समझ में आ रहा है? So we have, and u is given by this particular table. Okay, so now we have this as p and this as q. तो देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पे 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है, 1 माइनस पी प्लस क्यू करने से 0 नहीं आएगा. ठीक है, 1 प्लस क्यू पी प्लस क्यू एक्स करने से क्या आएगा, देखो p प्लस क्यू एक्स करने से देखो -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स. तो ये कैंसिल हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और 2 1 प्लस, तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया 0 आ गया. तो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया. इसका मतलब तो पार्ट ऑफ सी एफ क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स. ओके, तो पार्ट ऑफ सी एफ, पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1. ठीक है, तो पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, इज u इज इक्वल टू एक्स. तो u इज इक्वल टू एक्स मिल गया. अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है. v जैसे ही मिलेगा तो u टाइम्स ऑफ v इज नथिंग बट द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. लेट अस फाइंड दिस v. ठीक है, तो इस इक्वेशन में डालो तो क्या हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर
प्लस p की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो हो जाएगा -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 2 अपॉन यू, 2 अपॉन यू की वैल्यू x है, 2 अपॉन एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 होगा, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू, आर की वैल्यू क्या है x है ना, आर की वैल्यू x है, तो एक्स अपॉन एक्स, दिस इज 1। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज -2 अपॉन एक्स -2 प्लस 2 अपॉन एक्स, दिस इज dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो डी स्क्वायर -2d टाइम्स ऑफ v is equal to 1 and 1 we can write as e to the power 0x. Let us solve this using CF plus PI method. Okay. देखो हमारा u पार्ट ऑफ CF, ये क्या, u की वैल्यू x आ गया, v निकालना है, तो यहाँ से आ गया देखो डी स्क्वायर -2d टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू e to the power 0x, है ना, v की वैल्यू निकालना है ना। अब देखो यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर -2m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा m -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 2 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर 2x, समझ में आ रहा। और pf क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0x अपॉन डी स्क्वायर -2d। अब यहाँ पे d की जगह पे 0 रखो, 0 रखने से क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, x टाइम्स ऑफ e टू द पावर 0x, और नीचे उसको डिफ्रेंशिएशन करना है 2d माइनस 2, ठीक है। अब इसको d की जगह 0 रखो, 0 रखने पे क्या आएगा देखो, x अपॉन दिस इज -2, तो पी की वैल्यू आ जाएगा x अपॉन -2 और CF की वैल्यू ये हो गया। तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v की वैल्यू v इज इक्वल टू CF प्लस PI, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e टू द पावर 2x और PI की वैल्यू -x अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया v का वैल्यू। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ v, तो x टाइम्स ऑफ v दैट इज C1 प्लस C2 e टू द पावर 2x माइनस x अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 क्या आया था, x आया था। इसको एनालाइज करो, देखो y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 e टू द पावर -2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो x क्या है देखो, पार्ट ऑफ ये पूरा हमारा CF है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये हमारा PI है। तो पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 x आ रहा है ना, वही है यहाँ पे, u is equal to x is the part of complementary function. Okay, so this is all about the change of dependent variable when part of complementary function is known. Okay, so we will discuss further questions in this particular topic in next lecture. Thank you.